Welcome students. In this video, we will learn about level measurement in industries. In industries, we have to measure level of different vessels or tanks that may contain liquids, solids or slurries. Now let us go to the slides. Level measurement. There are basically two methods of measuring level. One is direct method and another is indirect method. Direct indication of level. In this type of direct methods, we can use dipstick, sight glass or floats. Direct method means measuring directly the thing, that is the level which is to be measured. And the second method is indirect method. Indirect method means measuring something else to find out something else. That means indirectly we can either measure capacitance, that is due to the change of level. If the capacitance is changing, that means we are using capacitive transducer or inductive transducer, or similarly ultrasonic waves can be used, conductivity transducers जिनकी conductivity change हो जाए, or in other words resistance change हो जाए level के साथ. Similarly, optical transducers are also used in indirect methods. And one more, that is we call it microwave. When we use microwave frequencies to measure level, this is known as radar method. In direct method we have dipstick, जैसे कि एक स्टिक को डिप करके फिर देख लेना कि कितना लेवल है. मैनुअल मेथड्स हैं ये. साइड ग्लास मेथड. साइड ग्लास मेथड में टैंक में एक विंडो होगी जो कि ट्रांसपेरेंट होगी ग्लास की, जिसके थ्रू हम ऑपरेटर लेवल चेक कर सकता है. और ऐसे ही फ्लोट्स. दिस स्लाइड शोज द बेसिक्स ऑफ लेवल मेजरमेंट यूजिंग फ्लोट. फ्लोट बेसिकली क्या है? फ्लोट ये है, एक एयर फिल्ड ग्लोब, एयर फिल्ड बॉल. ये फ्लोट है, ये पॉइंटर है और ये स्केल है. ये फ्लोट लिक्विड में बॉयंसी की वजह से तैरेगा. जैसे जैसे लिक्विड का लेवल बढ़ेगा ये ऊपर जाएगा, लिक्विड का लेवल कम होगा तो ये नीचे जाएगा. ये काउंटर वेट है और ये इस गियर को घुमाएगा. उसके साथ ही ये मैकेनिकल लिंकेज से पॉइंटर अटैच है. तो दिस इज ए सिंपल फ्लोट यूजिंग मैकेनिकल लिंकेज. सो दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लेवल. और उस फ्लोट के साथ अगर हम अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जोड़ दें, एक पोटेंशियोमीटर यूज कर लें. ये देखिए, ये फ्लोट है, इसका मूवमेंट पानी के, अगर ये वाटर है या जो भी लिक्विड है जिसमें हम मेजर कर रहे हैं, उस हिसाब से ये चेंज होगा. और यहाँ पर हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया है विच हैज़ बीन पावर्ड बाय बैटरी. तो ये एंगुलर पोटेंशियोमीटर है. यहाँ पर वोल्ट मीटर एक लगा दिया. तो जैसे जैसे पानी का लेवल या जिस भी लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, ये फ्लोट ऊपर की तरफ जाएगा. इससे मैकेनिकल लिंकेज से ये वाइपर मूव करेगा और यहाँ पर वोल्टेज बढ़ती जाएगी. पानी का लेवल कम होता जाएगा, वोल्टेज कम होती जाएगी. तो डायरेक्टली वी हैव कन्वर्टेड द लेवल इन ए टैंक इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दैट इज बीइंग रेड बाय दिस वोल्ट मीटर. We can still call these methods as direct methods. Now let us see the indirect methods, and the first method is the capacitance type level sensors. In this we use capacitive transducers. और आप सबको मालूम ही है कि capacitance is equal to basic formula epsilon naught epsilon r a by d, और C is equal to epsilon a by d, where a is the overlapping area of two plates of the capacitor, d is the distance between the plates, spacing between the plates, or epsilon is the dielectric constant of the insulating material used in the capacitance. All capacitive transducers generally keep two variables fixed and the third is made to change in accordance with the quantity which is being measured. So the capacitance changes accordingly. तो यहाँ पर अगर हम देखें इस फार्मूला में, अगर डाइलेक्ट्रिक चेंज होता है, फिजिकल डायमेंशंस एरिया और स्पेसिंग सेम रहती है तो भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी. अगर इंसुलेटिंग मटेरियल सेम रहता है, एरिया हम ओवरलैपिंग का चेंज कर दें तो भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है. सिमिलरली अगर हम दो प्लेट्स की स्पेसिंग चेंज कर दें, यानी कि उन दोनों का डिस्टेंस चेंज कर दें, तो भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी. सो
2 out of these 3 are made constant and 1 is varied, and that variation is according to the quantity to be measured. Now let us have a look how this happens. Variable capacitive transducers. So these are the 2 plates. Here in first figure we see that one plate is movable. It can move towards left or right in this case. So the overlapping area can be changed. So A is written here. So this is variable area transducer, capacitive transducer. Similarly, in this second figure, changing distance between the plates. This plate is movable up and down. This is stationary. So that spacing between the plates can be changed. So I have written here D. And similarly, the third type of capacitive transducer, that is changing the dielectric or the insulating material between plates. So this is first plate, second plate, and in between these, this is the dielectric. It can be taken out or slide inwards. So by changing A, D or epsilon, that is the dielectric constant of the insulating material, we can change the capacitor. So this is known as variable capacitive transducers. यही ट्रांसड्यूसर्स हम यूज करने वाले हैं लेवल मेजरमेंट में. नाउ हैव ए लुक एट द स्लाइड. इट शोज वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेथड ऑफ लेवल मेजरमेंट. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द फर्स्ट फिगर. ए कंटेनर इज देयर. सपोजिंग दिस इज ए मेटेलिक कंटेनर, दिस इज लिक्विड, एंड दिस इज another electrode which is insulated from outside. अंदर इसके कंडक्टर है और बाहर से ये इंसुलेटेड है. तो एक इलेक्ट्रोड तो कैपेसिटेंस का ये बन जाएगा, और दूसरा, क्योंकि ये टैंक ही मेटेलिक है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये बन जाएगा. तो यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटेंस हमें मिलेगी. तो इसमें भी 2 केस हैं. ये देखिए, ए लिक्विड नॉन कंडक्टिव. अगर ये नॉन कंडक्टिव लिक्विड है जिसका लेवल H हम मेजर करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोड एंड टैंक वॉल, दीज आर द लाइक प्लेट्स. ये कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह काम करेंगी. और लिक्विड जो कि डाइलेक्ट्रिक है, वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा. तो जैसे जैसे लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लीजिए आप, या एप्सिलॉन चेंज होता जाएगा. ये नीचे होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और होगा. सिमिलरली बी, इफ द लिक्विड इज कंडक्टिव. अब ये कंडक्टिव लिक्विड है, ये भी टैंक भी मेटेलिक है, तब क्या होगा? इलेक्ट्रोड एंड लिक्विड, दीज विल एक्ट एज प्लेट्स. ये इलेक्ट्रोड और ये लिक्विड. अब लिक्विड भी प्लेट की तरह काम करेगा, क्योंकि लिक्विड मेटेलिक टैंक के साथ अटैच्ड है, कंडक्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है. अब इंसुलेशन का काम कौन करेगा? जो ये इंसुलेटेड इलेक्ट्रोड है, ये ऊपर से इसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर चढ़ी हुई है, वो लेयर एक्ट करेगी एज डाइलेक्ट्रिक. तो जैसे जैसे लेवल चेंज होता है, वैसे वैसे कैपेसिटेंस चेंज होगी. वो हमने पहली स्लाइड में देखा था, एक बार दोबारा देख लेते हैं उसको. लिक्विड जब नॉन कंडक्टिव है, तो जैसे जैसे ये हमने इंसर्ट किया था या बाहर निकाला था, एप्सिलॉन चेंज हो गया था. वैसे ही जब लिक्विड नॉन कंडक्टिव है, तो जैसे जैसे लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे एप्सिलॉन चेंज होगा. नाउ लुक एट सेकंड फिगर. हेयर द कंटेनर ऑफ द लिक्विड इज नॉन मेटेलिक. तो बेसिक प्रिंसिपल सब वही रहेंगे. यहाँ पर अब हम, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक है टैंक, तो टैंक को एज एन इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर सकते. देन वी विल गो फॉर 2 सच इलेक्ट्रोड्स इन दिस व्हेन द टैंक इज नॉन मेटेलिक. और ये भी क्या है? इंसुलेटेड मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं. बाहर इंसुलेटर की कवरिंग है, वो प्रोवाइड करवा देंगे डाइलेक्ट्रिक. तो 2 इलेक्ट्रोड्स वो प्लेट्स की तरह काम करेंगे. और जैसे जैसे लिक्विड लेवल चाहे यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, तो कैपेसिटेंस चेंज होगी. अब एक सर्किट में कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, तो हम इलेक्ट्रिकली उसको मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रिज सर्किट बना सकते हैं उसका, और पोटेंशियल डिवाइडर बना सकते हैं, या उस कैपेसिटेंस को एक LC ऑसिलेटर की तरह यूज कर सकते हैं. जैसे ही कैपेसिटेंस चेंज होगा, फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी. दूसरे शब्दों में कहें तो बात यह है कि जैसे जैसे लेवल चेंज हो रहा है, वैसे वैसे कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, और उस हिसाब से हम किसी सर्किट में उसको मेजर कर लेंगे. तो
उस सर्किट से हमें सिग्नल मिल जाएगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि लेवल कितना है और कॉन्टिन्यूस लेवल इसमें हम मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेथड. So next is ultrasonic method of level measurement. Ultrasonic transmitter and receiver, they work on a frequency range of 40 किलोहर्ट्ज टू 200 किलोहर्ट्ज और ये फ्रिक्वेंसी ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते. तो यहाँ देखिए आप, ये टैंक है, इसके ऊपर एक ट्रांसीवर है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर भी है, इसमें रिसीवर भी है और नीचे ये लिक्विड है टैंक में. यहाँ से ट्रांसमिशन होगा पल्स का, अल्ट्रासोनिक वेव का. ये वेव सरफेस पे जाके स्ट्राइक करेगी और वापस रिसीव हो जाएगी. तो द थिंग इज वी हैव टू मेजर द टाइम फ्रॉम ट्रांसमिशन टू रिसेप्शन. अगर ये लेवल कम होगा तो नेचुरली वेव को नीचे जाना पड़ेगा और नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा. तो अगर लेवल कम है तो वेव जाकर वापस आने में ज़्यादा समय लेगी. अगर ये लेवल ऊपर है तो वेव कम समय लेगी. सो इन अदर वर्ड्स, इनडायरेक्टली इफ वी मेजर टाइम वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द लेवल, दैट इज एच. तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है वेव को तो लेवल कम है, अगर वेव को टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब लेवल हाई है. सो टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज मेजर्ड टू गेट एन आइडिया ऑफ द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द टैंक. तो यहाँ से आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा जिसे हम सिग्नल कंडीशनिंग के द्वारा लेवल मेजर कर लेंगे. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट मेथड. एडवांटेजेस, दिस इज नॉन इन्वेजिव, कॉन्टैक्ट नहीं करना इसमें ट्रांसड्यूसर का लिक्विड के साथ, दूर से ही ये मेजरमेंट कर लेगा. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. कैन बी यूज फॉर करोजिव एंड बॉइलिंग लिक्विड्स ऑल्सो, क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं है तो कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से हमारे ट्रांसड्यूसर को कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा. तीसरा, नो मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है जैसे फ्लूट में आपने देखा था. सो लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक मेथड ऑफ लेवल मेजरमेंट. नाउ द disadvantages or the limitations. Naturally it is expensive, not suited for surfaces which are having turbulence, जिसमें उतार चढ़ाव हो रहे हैं ये लेवल, तो उस केस के लिए ये अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट सूटेबल नहीं है. एंड दिस मेथड कैन बी इफेक्टेड बाय एनवायरमेंट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एट्सेट्रा. तो उस केस में भी अगर वेरिएशंस हैं तो ये हम अवॉइड करते हैं. So this is the ultrasonic method of level measurement and it comes under the category of, normally we call it indirect method. So ये level measurements आपने देखा. level measurements हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, बॉयलर्स में या फ्यूल टैंकर्स में. जैसे कि आपने देखा ही है, कार में भी एक फ्यूल गेज होता है, उसमें भी हम लेवल सेंसर यूज़ करते हैं. तो अलग अलग टाइप के लेवल सेंसर, दीज आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. थैंक यू वेरी मच.